Amazon CEO Andy Jassy says artificial intelligence will lead to a reduction of its corporate workforce eventually over the next few years. Half of entry-level white-collar jobs disappearing and 10 to 20% unemployment. That will result in a net loss of 14 million jobs, equivalent to 2% of current employment, according to the Future of Jobs report. Amid the rise of artificial intelligence in the workplace, artificial intelligence is one of the top 5 reasons behind job losses this year. That's according to career transition service firm. Increments are slow, and AI is probably coming for your job. 40% of all jobs around the world will be impacted by AI. दो 2023-2024 में ऐसा लग रहा था कि दुनिया एक नई रेवोल्यूशन के बीच खड़ी है, जैसे हर तरफ सिर्फ चर्चा हो रही थी एआई की। Most of the AI experts believe that sometime in the next 5 to 20 years we'll make AIs that are smarter than people. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. A couple of years ago, you could say that AI models were maybe as good as a smart high school student. I would say that now they're as good as a smart college student. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. ऐसा लग रहा था that AI will replace human. Multiple MNCs के CEO कह रहे थे कि आने वाले सालों में लाखों नौकरियां खतरे में हैं। People will lose jobs. Yeah. Many new jobs will be created. I think much better jobs. No job is needed. The AI will be able to do everything. उन्होंने हायरिंग रोक दी, उन्होंने नए जॉब्स ऑन बोर्ड करना बिल्कुल ही बंद कर दिया और तो और लेऑफ्स भी शुरू हो गए। The great tech layoff tsunami is here. Almost daily we hear about jobs. In almost all the cases, it's because of AI. Layoffs are up, hiring is down, increments are slow, and AI is probably coming for your job. कई इन्वेस्टर्स थे जो अरबों डॉलर एआई स्टार्टअप्स या ऐसी कोई भी कंपनीज जो एआई रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रही थी, उन्होंने उसमें मल्टीपल और मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो आने वाले समय में ऑफिसेज में इंसान से ज़्यादा एल्गोरिदम्स काम करेंगे, लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। But as we near 2026, the goose is looking less golden. It's more like a very expensive pigeon. कुछ कंपनीज जिन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को फायर किया था so that they can replace it with AI for more productivity at the least cost, उन्होंने क्वाइटली ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन मैन पावर को वापस से हायर करना शुरू किया। कस्टमर सपोर्ट टीम वापस लाई गई, कंटेंट मॉडरेटर वापस से हायर किए गए, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्ट में भी जिन कंपनियों को बहुत कॉन्फिडेंस था दैट एआई विल रिप्लेस इवन द सॉफ्टवेयर डेवलपर, उन्होंने भी ये एडमिट किया कि एआई अभी उतना भी परफेक्ट या उतना भी केपेबल नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। A new MIT study says the quiet part out loud. 95% of enterprise AI pilots fail. 95%. They do not deliver any meaningful revenue impact. तो आखिर हुआ क्या? क्या AI ओवरसोल्ड था या ओवरहाइप्ड था, या कंपनीज जिन्होंने भी AI का प्रोडक्ट बनाया था क्या उन्होंने ओवरहाइप करके रखा था अपने प्रोडक्ट को, या फिर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन का फर्स्ट फेज है? आइए हम और आप मिलकर इस चीज का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। आज हम डेटा, रिपोर्ट्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम, इस पूरे हाइप के पीछे क्या है। According to this report. According to the report. According to the official report. According to a survey of employers published by the World Economic Forum. ये सब कुछ शुरू हुआ नवंबर 2022 में, जब चैट जीपीटी पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ। स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट्स करने लगे, प्रोग्रामर अपना कोड जनरेट करने लगे, कंपनीज कस्टमर ईमेल ऑटोमेट करने लगी, और इन्वेस्टर्स को लगा कि ये इंटरनेट के बाद बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। इसके बाद बिग टेक कंपनीज में एक रेस लगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा एंड अमेजॉन सब ने अरबों डॉलर खर्च करने शुरू कर दिए अपने एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट करीब $1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी। $1 trillion. And according to a new OpenAI-backed report, AI could add nearly $1 trillion to its private market value, what investors think it could be worth before going public, has reportedly surged towards $1 trillion territory. लेकिन हिस्ट्री हमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है जो हर एक नए बदलाव के साथ आता है। जैसे रेलवेज के साथ हमने हाइप देखा था, हमने इंटरनेट के साथ देखा था, हमने .com के साथ देखा था, और अब एआई के साथ भी वही हाइप दिख रहा है।
टेक्नोलॉजी फर्म गार्टनर इसे एक हाइप साइकिल कहती है। इस मॉडल के अनुसार कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो सबसे पहले वो एक अनरियलिस्टिक हाइप क्रिएट करती है मार्केट में, और इसके बाद विथ टाइम ये मार्केट डिसाइड करता है कि क्या वो टेक्नोलॉजी सही में उस एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरी है या वो एक सिर्फ हाइप थी। तो सवाल ये है कि क्या एआई भी उसी फेज में है? कई कंपनीज ने सोचा कि एआई कस्टमर एजेंट को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। लॉजिक बहुत सिंपल था। एआई 24 घंटे काम कर सकता था, एआई ब्रेक नहीं लेता था, एआई कोई पैसा नहीं डिमांड करता था, एआई ज़्यादा प्रिसाइज था और थ्योरेटिकली कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए, पर रियलिटी कुछ और निकली। Problem has started to emerge. AI is becoming very expensive. Because AI maybe is becoming too expensive to scale. Using OpenClaw these days is like driving a Ferrari. Tech is scrambling to slow down its use of AI. Major companies have already exhausted their annual budgets, and some say it's getting more difficult to justify the costs. कई कंपनीज ने ये पाया कि कस्टमर एआई चैटबॉट से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो सिंपल क्वेरीज के जवाब तो दे रहा था, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब देने होते थे तब एआई फेल हो जा रहा था, या पूरा एंटायर सिस्टम ही फेल हो जा रहा था। एआई एजेंट बार बार वही इंफॉर्मेशन रिपीट कर रहा था और अंत में ह्यूमन कस्टमर एजेंट को आके उस चीज का सॉल्यूशन देना होता था। रिसर्च फर्म मैकेंजी और आईबीएम की रिपोर्ट्स भी यही बताते हैं। अभी भी इफेक्टिव मॉडल ह्यूमन प्लस एआई ही है, ना कि कंप्लीट एआई। लेकिन एआई आज भी सरकाज़म, कॉन्टेक्स्ट, रीजनल लैंग्वेज और इमोशनल नुआंस को नहीं समझ पाता है। उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस मजाक है, सटायर है या हेट स्पीच है, एआई के लिए आज भी ये तय कर पाना या इस दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाना मुश्किल है। और इसी की वजह से आज भी हजारों ह्यूमन मॉडरेटर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। लेकिन एआई की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि एआई को रन करना इतना सस्ता भी नहीं है। As tech companies' AI-related spending has ballooned into the hundreds of billions of dollars, the realization by tech companies that AI computing costs are exceeding employee expenses are posing a new challenge for the industry. जब भी लोग AI यूज करते हैं तो उसको सॉफ्टवेयर होने की वजह से ऐसा मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट जीरो है, लेकिन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं। एडवांस AI मॉडल्स को चलाने के लिए ह्यूज डेटा सेंटर्स चाहिए, हाई परफॉर्मिंग GPUs चाहिए, एक मैसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी चाहिए होता है, और इसके अलावा उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट और ट्रेन करना भी होता है। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार कई बार कटिंग एज AI मॉडल को ट्रेन करने की कीमत करोड़ों डॉलर तक पहुंच जाती है, और ये सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट है। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट कॉस्ट होता है और AI मिस्टेक्स भी करता है। कई बार एक छोटी सी मिस्टेक आपको करोड़ों डॉलर का नुकसान दे सकती है। उदाहरण के तौर पे एआई अगर हेल्थ केयर में गलत डायग्नोसिस कर दे, लीगल इंडस्ट्रीज में गलत एडवाइस जनरेट कर दे, या फिर कोडिंग असिस्टेंट सिस्टम में बग इंट्रोड्यूस कर दे, तो हर आउटपुट में ह्यूमन वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि कंपनीज के लिए दोहरा खर्च, उन्हें एआई के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है और ह्यूमंस के लिए भी। यहीं पे कई कंपनीज को ये रियलाइज हुआ कि एआई एम्प्लॉयज को कंप्लीटली रिप्लेस करने के बजाय उन्हें असिस्ट करने में ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो अब ये सवाल हमारे मन में आता है कि क्या एआई बबल सच में फूटने वाला है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। कुछ इकोनॉमिस्ट की माने तो एआई मार्केट में एक बबल जैसा बनता हुआ कोई साइन दिख रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट काफी रैपिड हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी अभी क्लियर नहीं है। हालांकि हिस्ट्री हमें एक और लेसन देती है। साल 2000 में एक .com बबल फूटा था, हजारों कंपनीज बंद हो गई थी। तो क्या इंटरनेट के साथ वही हुआ? क्या इंटरनेट बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया बदल दी। संभव है कि एआई के साथ भी यही हो रहा हो। आज हमारी एक्सपेक्टेशंस जो एआई से है वो काफी बड़ी है, लेकिन टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। और आज भी जो ट्रेंड सामने आ रही है वो एआई ऑगमेंटेशन का है, यानी कि एआई ह्यूमंस को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा, एआई एज अ टूल काम करेगा टू मेक ह्यूमन मोर प्रोडक्टिव। फ्यूचर ह्यूमन विथ एआई वर्सेस ह्यूमन विदाउट एआई होगा। हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं। तो क्या एआई सिर्फ एक बबल है? शायद नहीं। तो क्या एआई ओवर हाइप्ड है? शायद नहीं। रियलिटी शायद इन दोनों के बीच में मौजूद है। हिस्ट्री बताती है कि हर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के पहले एक
हाइप क्रिएट होती है, फिर मार्केट रियलिटी सामने आती है और अंत में टेक्नोलॉजी अपनी जगह बनाती है। एआई भी शायद उसी जर्नी से गुजर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि क्या एआई जॉब रिप्लेस करेगा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम उस फ्यूचर के लिए अडेप्ट कर पाएंगे। क्या एआई एक बबल है या अगली बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की शुरुआत। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।